Dear students, today we'll read the second poem of 10th class, and the title of the poem is Fire and Ice. This is a very beautiful poem and symbolic poem by Robert Frost. First of all, we'll cover a summary of the poem. Fire and Ice is a strong symbolic poem. सिम्बलिक का मतलब होता है वेयर वी यूज़ अ लॉट ऑफ सिम्बल्स। तो यहाँ पर इस पोइम के अंदर फायर एंड आइस जो है वो सिम्बल्स के रूप में यूज़ किए गए हैं। कैसे यूज़ किए गए मैं आपको बता रहा हूँ। फायर जो है वो पैसन या डिज़ायर, लस्ट, ऐसी डिज़ायर जो कि अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो है फायर। और जो इसमें आइस है वो हेटर्ड के लिए यूज़ हुआ है, हेट के लिए, घृणा के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से एक सिम्बलिक पोइम है। वेयर फायर यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिज़ायर एंड आइस दैट ऑफ हेटर्ड, ही हैज़ यूज्ड द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल explanation for the end of the world. So in this poem the poet tells us about two different groups of people who have their different opinions about the destruction of the world, because they think that the world will surely end one day, and if it happens to be destroyed, then first root cause will be fire in the sense, because we see how the different countries these days are creating problems for other countries for their ambitious planning. They have lust, ambitions, and because of their own ambitions they are creating problems for other countries. So first, the root cause of the destruction of the world will be fire, and because fire can destroy each and every possibility of life on earth, while the other thinks that if ice as a result of extreme low temperatures could cover the earth's surface, and the other group of the people think that if the world has to end twice, then ice would be sufficient to destroy the world. Here ice has been used for hatred, because there is a lot of hatred among the people, and because of hatred they will end one another's life on the earth. So in this way the poet tells us that both the components, ice and fire and ice are which have been compared with emotion, extreme passion, emotion, lust, desire, and ice that has been used for hatred will be the root cause of world's destruction. So, but then he thinks that icy hatred is just capable of ruining humans. Ruining का मतलब destroying, killing humans, though slowly and steadily. Therefore, if earth was to end to ice would be just as good as fire. If fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silent damage. Similarly, if fire is pure passion, ice is pure reason. Thus, the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, they will surely bring us all on the verge of destruction. So, let's read the poem from the scrap. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Here in this poem, the poet Robert Frost tells us that people say the world will end in fire, कि जो वर्ल्ड है वो फायर से, आग से नष्ट हो जाएगा. सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से, बर्फ़ से नष्ट हो जाएगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो मैंने डिज़ायर के बारे में जाना है, रियलाइज़ किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर,
तो मैं उन लोगों के साथ में स्टैंड करता हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो में कहते हैं कि वो अलग अलग लोगों की बातें सुनता है। दो ग्रुप हैं लोगों का। एक ग्रुप कहता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से, आग से नष्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट, और दूसरा ग्रुप कहता है कि वो आइस से नष्ट हो जाएगा। और जो कुछ यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फायर किसके लिए आया है। फायर आया है पैशन के लिए, लस्ट के लिए, डिज़ायर के लिए और एम्बिशन के लिए। ऐसी इच्छा जो अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो हमारी डिज़ायर ही होती है। तो जो ओवर एम्बिशन है, जो डिज़ायर, एक्सट्रीम डिज़ायर है, वो आग का काम करेगी संसार को डिस्ट्रॉय करने में, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। और जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिलीव करता है, जिनका मानना है कि जो आइस है वो ही संसार का कारण बनेगी, एंडिंग का कारण बनेगी। क्यों मानते हैं वो? कि जो आइस है वो हेटेड है, हेटेड का सिंबल है आइस, और घृणा के कारण ये संसार अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्योंकि घृणा के चलते जो हैं लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, एक दूसरे से जेलसी करेंगे, और धीरे धीरे वो जो है दे विल हैच conspiracy and they will make such type of planning to destroy the people, and silently this process will destroy the whole world। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिज़ायर जो वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। डिज़ायर किसके लिए यूज़ हुआ है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। यानी कि कोई चीज़ चाहना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी जो फीलिंग है उसको डिज़ायर कहा। इसको हम लस्ट भी कह सकते हैं, LUST, लस्ट। फेवर, फेवर मीन्स अप्रूवल, स्पोर्ट। अगर कोई स्पोर्ट करता है, अप्रूवल करता है, दैट इज़ फेवर। तो यहाँ पर हमें ये समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकेंड स्टेंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से नष्ट होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जो दो ग्रुप हैं जिनका अलग अलग मानना है, उन लोगों के ओपिनियन को सुनने के बाद में, समझने के बाद में इस पॉइंट पे पहुंचा है कि जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है, यानी कि पोइट ने जहाँ तक रियलाइज़ किया है, तो वो उन लोगों के साथ में स्टैंड करता है जो फेवर करते हैं फायर को। किसको फेवर करते हैं? फायर को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फायर है वो आग के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा है, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, ये है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, लेकिन अगर संसार को नष्ट होना है ट्वाइस, दो बार, तो यहाँ पर पोइट कहता है कि पहले तो संसार जो है आग से ही नष्ट हो जाएगा। आग का मतलब अपनी इच्छा से ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों की इच्छा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको दोबारा से नष्ट होना पड़े ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोइट कहता है कि जहाँ मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं हेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफीस, कि वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो भी पर्याप्त होगी, यानी कि हेटेड जो है वो पर्याप्त होगी। क्योंकि संसार जो है दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड द डिस्ट्रक्शन इफ़ हैपन्स ट्वाइस इट वुड बी बाय हेटेड, एंड हेटेड के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर आइस। अब यहाँ पर जो मीनिंग्स हैं, पेरिश, पेरिश का मतलब होता है टू बी इन डेंजर और डाई। सफिस मीन्स बी सफिशिएंट, ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं।
अब हम जो है इसमें पोएम के जो लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो राइमिंग स्कीम इस पोएम में है ABCBCB। यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊं कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि राइम स्कीम में क्या होता है कि जो राइमिंग वर्ड्स हैं उन पे हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जो एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं उनको हम ए मान लेते हैं, फिर जो सेकंड ग्रुप है उसको बी मान लेते हैं और जो थर्ड ग्रुप है उसको सी मान लेंगे। और जब उन जैसे ही आगे राइमिंग वर्ड्स मिले तो उनको पहले वाले ही कैटेगरी में रखते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गोट दैट माय पॉइंट। एसोनेंस, अब जो सेकंड लिटरेरी डिवाइस जो पोइटिक डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस जो है इट इज़ रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स इन सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर जो वाउल साउंड्स का जो यूज़ किया जाता है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। और दिस द रेपिटेशन इज़ एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड्स। एग्जाम्पल द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, जो यहाँ पर ओ के जो लॉन्ग साउंड है उसके बारे में, जैसे कि लाइन है पोएम के अंदर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पर होल्ड में भी ओ आ गया, दोज में भी ओ आ गया, हु में भी ओ आ गया, फेवर में भी ओ आ गया। तो यहाँ पर जो है रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड है इन ए लॉन्ग सेंटेंस और इस वजह से ये अपना हो गया एसोनेंस। थर्ड, जो थर्ड पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स अगर उनकी रेपिटेशन हो जाए इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स तो दैट वुड बी एलिट्रेशन। जैसे द साउंड ऑफ फेवर, फेवर फायर, तो फेवर में भी एफ है, कॉन्सोनेंट है, फायर में भी एफ है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से वर्ल्ड विल, वर्ल्ड में डब्ल्यू है, ये भी कॉन्सोनेंट है, विल में भी डब्ल्यू है, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल में जो टी है, ट्विंकल ट्विंकल, तो टी की यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है और इसका रेपिटेशन हुआ है, इस वजह से ये एलिट्रेशन है। फोर्थ इज़ इमेजरी। इमेजरी का मतलब जब हम ऐसे वर्ड्स का पोइट यूज़ करता है जिससे हम जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक इमेज बनती है तो उनको हम बोलते हैं इमेजरी वर्ड्स। इमेजरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस, यानी कि जब रीडर अपने फाइव सेंसेस का यूज़ करते हुए पोएम के अंदर बिल्कुल डूब जाता है तो उसे इमेजरी कहते हैं। एग्जाम्पल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, to say that for destruction ice is also great. So here these lines, these sentences make us think that we need self introspection over here, and we need to think deeply, and we need to perceive things with our five senses. Anaphora is the fifth poetic device. The repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive lines. Consecutive का मतलब लगातार जो लाइन है एक के बाद एक आने वाली। Some say is repeated at the start of line first and second. जो ये same line has been repeated, so that's why it is anaphora. Personification होता है when inanimate things, when non-living things are given the characteristics of living beings, that would be personification. So यहाँ पर fire and ice are capable of destruction. Thus the poet personifies fire and ice by giving the mind and power to destroy anything. Enjambment. It is defined as the thought or clause that does not come to an end at a line break, rather it moves over to the next line. Example from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So यहाँ पर जो है एक ओपिनियन की बात हो रही है और वो ओपिनियन एक फर्स्ट स्टैंजा से ही, जो फर्स्ट स्टैंजा के लाइन में आई है और वही जो विचार जो फर्स्ट स्टैंजा में था वही विचार जो है, वही जो ओपिनियन है, वही जो थॉट है वो सेकंड स्टैंजा में भी आता है। इस वजह से ये यहाँ पर एंजैम्बमेंट है, यहाँ पर इस पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पोएम। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम you can call me up, and resolution
will be given to you, solution will be given to you on the line. There will be no problem at all. Thank you. Have a nice day.